So, hi everyone. In the last class, we have discussed the provisions related to the power to transfer the cases from one court to another. And under that provision, we have already discussed that when there is the situation of the transferring of the cases from one court to another, the the primary thing that need to be taken care of that the requirement of the party who has prayed for the transfer of the cases, and then it can be done. For example, if the husband and the wife, as we have understood in the last class, if the husband and the wife, both of them has applied for the divorce of the judicial separation or the decree of the divorce or the restitution of the conjugal rights, whatever the case may be, okay, in those circumstances, it is if the if both of the petitions are at the same district court, at the same session court, then both of the cases is supposed to be tried together by the parties. Okay. For example, what we have understood that you and me are two parties. Okay. मान लो I am having my husband, and there is the dispute between me and my husband. So we don't want to stay together with each other, and as we don't want to stay together with each other, we want a divorce or the separation. Okay. And as we are staying at the same locality, we both have given a petition for the divorce. Okay. At the same district court or the same session court. Okay. So even if there is the two separate petitions has been filed, the both of the cases won't be carried separately. That means even if there is the presence of the two different petitions, both the petitions will be continued all together. That means ये जो दोनों दोनों केस अलग अलग फाइल किया गया है ना, ये both of the facts and the circumstances of both the cases are same. For example, if the both the petitions are regarding the judicial separation, one of the party has applied for the judicial separation and the another party has applied for the divorce, then the both of the petition has been filed in the same session court. Then the case, both of the cases or both of the petitions should be carried together under one judge only. That is the thing we have already discussed. And about the transfer of the petitions from one court to another, we have already understood. For example, the wife has filed the petition at the Session Court of Delhi. Okay. And the husband has filed the petition of the divorce at the Session Court of Bangalore. Okay. Both of them are staying separate from each other. So it will be first seen that who has at first filed the petition. पहले किसने केस फाइल किया था? अगर पहले दिल्ली कोर्ट पे अगर मान लो टुडे इज 26 ऑफ द अक्टूबर, 26 ऑफ द अक्टूबर में दिल्ली कोर्ट पे केस फाइल किया गया है, बट उससे पहले 24 ऑफ द अक्टूबर को बैंगलोर का सेशन कोर्ट पे केस फाइल ऑलरेडी हो चुका है बाय द हस्बैंड. So the second petition which has been filed at the district court of Delhi, that will be transferred to the district court of Bangalore. Got it? That means Joe case, who is the prior party who has filed the case. It might be any of the spouse, it might be the husband, might be the wife, जो भी हो, जिसने भी पहले केस फाइल किया हो, दूसरे पार्टी को, दूसरे पार्टी का जो केस होता है वो पहला पार्टी का जो भी लोकेशन होता है जहां पे भी केस फाइल हुआ किया गया है उसी लोकेशन पे ट्रांसफर हो जाता है. ओके, गॉट इट. सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 21 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट. देन कम्स section 21b. It speaks about the special provision relating to the trial and disposal of the petitions under this act. And we have understood that the trial of the petition under this act will be with the interest of the justice be continued from day to day until its conclusion the court finds the adjournment. Okay. And if
The court will always take care that the petition under this act shall be tried expeditiously as possible, and endeavors shall make to conclude the trial within 6 months from the date of service of notice of the petition to the respondent. Okay, तो एट द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ द पिटिशन, जिस दिन पे पिटिशन का डेट दिया गया है फॉर द सर्विस ऑफ द पिटिशन, उसी से 6 महीने के अंदर ये मामला का डिस्पोजल हो जाना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फाइल्ड ए पिटिशन ऑफ द जुडिशियल सेपरेशन अगेंस्ट माई हस्बैंड इन द सेशन कोर्ट. ओके, so the point is, when there is the filing of the petition against my husband in the session court itself, then the matter need to be concluded, need to be disposed in between 6th month from the passing of the notice to the respondent. Okay. If I am the petitioner over here, then who is the respondent? My husband. Because I have applied for the judicial separation with my husband. क्योंकि मैं अपने पति के साथ एक साथ रहना नहीं चाहती हूँ. दैट इज वाई आई हैव अप्लाइड कि मुझे जुडिशियल सेपरेशन चाहिए. मैं अपने पति से अलग रहना चाहती हूँ. गॉट इट? So when there is the application for the judicial separation between the parties, the party who is the respondent has filed the case, who is the petitioner has filed the case, who is the opponent party, the respondent. एंड यहाँ पे जब मैं केस फाइल करती हूँ तो नोटिस किसके पास जाता है? रेस्पोंडेंट के पास जाता है. हाँ कि ना? तो डे टू डे बेसिस पे जब केस का हियरिंग होता है, इसमें लिखा गया है कि डे टू डे बेसिस पे, मतलब आज हुआ, कल होगा, परसों होगा, रेगुलर बेसिस पे केस का हियरिंग जितना जल्दी हो सके उतना होता है. बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल वकील जो होते हैं ना, वो बोलते हैं कि नहीं चलो मुझे 10 दिन का वक्त चाहिए. फिर जज बोलते हैं कि चलो आप एक दिन का आज हियरिंग हुआ, एक हफ्ते बाद दूसरा हियरिंग हुआ. क्योंकि एक केस कोर्ट पे नहीं होता है, बहुत सारे केसेस होता है ना, तो उनका डे टू डे बेसिस पे नहीं हो पाता यूजुअली. बट जितना जल्दी हो सके एक्सपीडिशियसली मामला का हियरिंग हो जाना बहुत जरूरी होता है. और अगर मैं आज के डेट पे पिटिशन फाइल कर रही हूँ, तो पिटिशन फाइल करने के बाद ए नोटिस विल बी इशू टू द रेस्पोंडेंट. रेस्पोंडेंट जो भी मेरा ओपोनेंट पार्टी रहता है, मेरा हस्बैंड जो ओपोनेंट पार्टी है, या फिर अगर हस्बैंड ने पिटिशन फाइल करती है तो वाइफ बन जाती है रेस्पोंडेंट, वाइफ हस्बैंड बन जाता है द पिटिशनर. तो जो भी रेस्पोंडेंट बनता है उसी को जिस भी दिन पे नोटिस इशू होता है, नोटिस इशू होने का 6 महीने के अंदर मामला का डिस्पोजल हो जाना बहुत जरूरी होता है. एंड व्हाई दिस टाइम पीरियड ऑफ द 6 मंथ इज गिवन, मैंने पहले से बताया था. अगर दोनों पार्टी पहले से ही एक दूसरे से अलग अलग रह रहे हैं, लाइक एज आई हैव टोल्ड यू कि एक साल जिस दिन पे पिटिशन फाइल किया जा रहा है, उससे से अगर हम एक साल पीछे को चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि उससे से एक साल पहले से ही वो एक दूसरे से ऑलरेडी अलग रह रहे हैं. उन दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं है, वो एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं. इन दैट सर्कमस्टेंसेस इफ द पार्टीज आर नॉट स्टेइंग विथ ईच अदर फ्रॉम लास्ट 1 year, then in that case the court will grant divorce immediately in the case of the application of the mutual divorce. बट अगर ऐसा है कि पार्टीज एक दूसरे के साथ रह रहे हैं बट ड्यू टू सर्टन डिस्टर्बेंसेस दे वांट सेपरेशन फ्रॉम ईच अदर, देन इन दैट केस द कोर्ट विल गिव देम द टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ. कोर्ट उनको 6 महीने का वक्त देगा टू नो ईच अदर, टू टेक द वे ऑफ द रिकंसिलिएशन बिटवीन द पार्टीज, ताकि उन दोनों का मन मिल जाए, उन दोनों के बीच में सब कुछ समाधान हो जाए एंड वो एक दूसरे के साथ फिर से रहने लगे. कोर्ट बिफोर ग्रांटिंग द डिवोर्स, द कोर्ट विल गिव द टाइम पीरियड ऑफ द 6 मंथ एट फर्स्ट. 6 महीने का वक्त कौन देगा? कोर्ट देगा. टू हु? टू द पार्टीज, ताकि उन दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाए एंड दे शुड स्टार्ट लिविंग टुगेदर अगेन. बट अगर 6 महीने के वक्त के अंदर कोर्ट को लगता है कि नहीं, अब 6 महीने के बाद भी पार्टीज आर नॉट इंटरेस्टेड टू स्टे विथ ईच अदर, देन इन दैट केस कोर्ट अप्रूव्स द डिवोर्स. गॉट इट? सो दैट इज वाई यहाँ पे ये लिखा गया है कि जिस दिन पे सर्विस ऑफ द नोटिस ऑफ द पिटिशन टू द रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट को जिस दिन नोटिस सर्व होता है उसी के 6 महीने के अंदर मामला का डिस्पोजल हो जाना चाहिए.
नोटिस नोटिस होने के बाद हियरिंग होता है। हियरिंग के अंदर कोर्ट 6 महीने का टाइम पीरियड देता है। तो इस 6 महीने में अगर कोर्ट को लगता है कि पार्टीज आर नॉट कॉम्पिटेंट टू स्टे विथ ईच अदर, देन द कोर्ट अप्रूव्स द डिवोर्स। और इन अनदर सर्कमस्टेंसेज जहाँ पे एविडेंस का जरूरत पड़ता है, कोई अदर दूसरा कोर्ट प्रोसीडिंग्स जरूरत पड़ता है, मेंटेनेंस का चीज आ जाता है, तो देन उस सर्कमस्टेंसेज पे 6 महीना से 18 महीना तक भी एक्सटेंड कर सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट, कोई भी पिटिशन रिलेटेड टू डिवोर्स हो गया, जुडिशियल सेपरेशन हो गया, एंड इन दिस मैट्रिमोनियल इशूज 18 महीना से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 18 मंथ्स। 18 महीना से कोई भी पिटिशन कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। जो भी होगा 18 महीने का अंदर मामला का डिस्पोजल हो जाना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ द डिस्पोजल ऑफ द पिटिशन रिलेटेड टू द मैरिटल अफेयर्स इज 18 मंथ। ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। ओके, तो उसी के बाद आपका आता है या अपील। व्हेन देर इज द केस ऑफ द अपील, यहाँ पे क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल आई एम द पार्टी, ओके, द कोर्ट हैज ग्रांटेड द अप्रूवल ऑफ द डिवोर्स। कोर्ट ने बोला कि हाँ ठीक है, आप एक दूसरे से डिवोर्स ले सकते हैं। बट एज ए वाइफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। मुझे कोर्ट का डिसीजन सही नहीं लगा, तो मैं क्या कर सकती हूँ? आई कैन अपील इन द सुपेरियर कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द सेशन कोर्ट। सुपेरियर कोर्ट कौन है? हाई कोर्ट है। तो जिस दिन मैं सुपेरियर कोर्ट में यानी हाई कोर्ट पे अपना अपील दाखिल करती हूं, अपील देने के बाद क्या होगा? ओपोनेंट पार्टी फिर बन जाएगा, जो भी ओपोनेंट पार्टी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम द पिटिशनर, तो जो भी आया डिसीजन, फॉर एग्जाम्पल द डिसीजन केम इन फेवर ऑफ द रेस्पोंडेंट, ओके, तो यहाँ पे आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, so what I'll do, again I will challenge the decision of the inferior court, the decision of the sessions court in the high court। तो हाई कोर्ट पे मैं फिर से क्या बन जाऊंगी? पिटिशनर बन जाऊंगी, अपेलेंट बन जाऊंगी। पहले मैं पिटिशनर थी, जब मैं कोर्ट का डिसीजन में खुश नहीं हूँ, सेटिस्फाइड नहीं हूँ, देन आई एम अपीलिंग द डिसीजन इन द हायर कोर्ट एंड आई बिकेम द अपेलेंट। एंड मेरे ओपोनेंट पार्टी हु इज माई हस्बैंड, जिनके फॉर्म में रिजल्ट आया है कि हाँ यहाँ पे डिवोर्स उनको मिल जाना चाहिए, ही बिकेम द रेस्पोंडेंट, ओके। सो उनको फिर से एक नोटिस जाएगा, ऑन बिहाफ ऑफ हुम? ऑन बिहाफ ऑफ द अपेलेंट, कि आपका जो भी डिसीजन हुआ था इन द लोअर कोर्ट और इन द सेशन कोर्ट, उसे डिसीजन के अगेंस्ट फिर से अपील किया गया है, आपको हाजिर होना पड़ेगा। टू हुम? टू द रेस्पोंडेंट। सो यहाँ पे जिस दिन रेस्पोंडेंट को अपील ऑफ द नोटिस जाता है, उसी का 3 महीने के अंदर मामला का डिस्पोजल होना जरूरी है। सो हमने क्या पढ़ा? व्हेन द मैटर इज एट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहां पे मिनिमम 6 महीने के अंदर मामला का डिस्पोजल हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 18 महीना तक जा सकता है। And when there is the appeal against the decision of the lower court in the superior court, that means against the decision of the sessions court, if the appeal is at the high court, then the high court should dispose the cases in between the duration of 3 month। 3 महीने के अंदर हाई कोर्ट मामला का डिस्पोजल कर देना चाहिए। Either the high court will dismiss the case, if the high court is not dismissing the case, entertaining the case, तो हाई कोर्ट का जो भी जजमेंट होगा वो 3 महीने के अंदर आ जाना बहुत जरूरी होता है। और तीसरा होता है, अगर हाई कोर्ट का डिसीजन पे भी पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड एंड द पार्टी वांट्स टू गो टू द सुपेरियर कोर्ट, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट, देन वहां पे भी जिस दिन पे नोटिस इशू किया जाता है टू द रेस्पोंडेंट, उसी 3 से 3 महीने के अंदर, इन बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ द 3 मंथ, द मैटर शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ। क्लियर? देन द नेक्स्ट पॉइंट कम्स अबाउट द डॉक्यूमेंटरी एविडेंस। डॉक्यूमेंटरी एविडेंस पे हम लोगों ने ये पढ़ा था, अगर किसी भी तरह का एविडेंस है, डॉक्यूमेंटरी प्रूफ है, जो कि रजिस्टर्ड नहीं है एंड ड्यूली स्टैम्प्ड नहीं है, मतलब उस डॉक्यूमेंट को ना प्रॉपरली स्टैम्प नहीं किया गया है एंड उसी को प्रॉपरली रजिस्टर नहीं किया गया है,
So you may ask me that will it be a ground, the the document when it is not duly stamped or not registered, will it be a ground for being the inadmissible evidence? The answer is no. Even if the document is not duly stamped or not properly registered, still it can be considered as an admissible evidence. And the admissibility of the document will be decided by the court. This is the discretion of the court. Court will decide कि यहाँ पे अगर ये जो डॉक्यूमेंट एज एन एविडेंस दिया गया है, इवन इफ इट इज नॉट स्टैम्प्ड, बट अगर ये जेन्युइन लग रहा है, इसी का वैलिडिटी है, इसका जेन्युइननेस है, तो इवन इफ इट इज नॉट स्टैम्प्ड, इट इज नॉट रजिस्टर्ड, स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड एज ए वैलिड डॉक्यूमेंट. क्लियर? देन कम्स सेक्शन 22, जहाँ पे हमने पढ़ा था अबाउट द पब्लिकेशंस ऑफ द प्रोसीडिंग्स मे नॉट बी इन प्रिंटेड एंड पब्लिश्ड. कोर्ट रूम में जो भी प्रोसीडिंग्स होता है उसी को प्रिंटेड या पब्लिश नहीं किया जा सकता है. एंड ओनली द मैटर्स or the cases in the high court and the supreme court that can be published through the news or any kind of the social media. and आजकल तो कोर्ट रूम का लाइव स्ट्रीमिंग भी चलने शुरू हो गया है. बट दैट टू, जो जो सेंसिटिव केसेस होता है ना, उसका हियरिंग कभी भी पब्लिक नहीं किया जाता है. बट द केसेस जहाँ पे कोर्ट को लगता है कि ये केस अगर पब्लिक होता है, अगर ये केस लोगों के पास पहुंचता है, इफ द पब्लिक इज गेटिंग द अवेयरनेस अबाउट द कोर्ट रूम प्रोसीडिंग्स दैट इज नॉट एनी हाउ हार्मफुल, then the due permission of the court, the publication of the printed media or the publication of the documents, or the live record of the courtroom proceedings, that can be done. बट उसी के लिए कोर्ट का प्रायर परमिशन लेना बहुत जरूरी होता है. ये हो गया आपका सेक्शन 22. लोअर कोर्ट का डिसीजन कभी भी लाइव नहीं होता है, ओनली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का जो भी होता है प्रोसीडिंग्स, उसी को लाइव किया जा सकता है. दूसरा हमने पढ़ा कि कोर्ट रूम में जो भी एजेंट्स होता है, जैसे कि बार एंड बेंच का हो गया, कुछ कुछ होते हैं, कुछ कुछ एजेंट्स होते हैं जो कि कोर्ट रूम का क्या क्या केसेस होता है वो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का साइट पर अपलोडेड हो जाता है, जो कि पब्लिक जानकारी के लिए जरूरी है. विद द ड्यू परमिशन ऑफ द कोर्ट, those things is been published or printed. Clear? Then comes section 23. Okay, so before going to let's come to the section 23. Section 23 speaks about the decree in the proceedings. Okay, so when we are talking about the decree in the proceedings, we have understood that what does it speak about? In the proceeding under this act, whether defendant or not, if the court is satisfied in the following circumstances, in those cases, the court shall decree, the court shall grant the such decree accordingly. So, what are the circumstances in which, if the court is satisfied in those circumstances, the court will approve the decree of the divorce or the judicial separation or the restitution of the conjugal rights? Let's understand this one by one. The first, it speaks about subclause A, B, C and clause 2 of section 5. Okay. So let's understand section 5, subclause A, B, C. What does it speak? First of all, subclause A speaks about when a party to the marriage is incapable of giving a valid consent due to the unsoundness of the mind. When a party is suffering from the unsoundness of the mind, कोई पार्टी दिमागी हालात पे उसका दिमागी कंडीशन ठीक ना हो, due to the unsoundness of the mind, the party is unable to decide what is right and what is wrong. उसको कुछ भी सही गलत चीज का समझ नहीं है. Then in that specific circumstances, okay, the party is incapable to give the valid consent due to the unsoundness of the mind. Okay, in that circumstances, then हमने क्या पढ़ा? पहले क्लॉज ए, दूसरा सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी ऑफ क्लॉज 2. ओके, बी में क्या बोलता है? इवन इफ द पार्टी इज कैपेबल ऑफ द गिविंग द वैलिड कंसेंट
he is unfit for the procreation of the children, and he is suffering from any kind of the mental disorder. That means the party is suffering of such a kind of mental disorder that he is unable to keep the physical relation, or unable or incapable for the procreation of his child, or due to the unsoundness of the mind, he or she is dangerous to the another spouse. That means मतलब उसका जब उसका दिमागी हालात हमेशा खराब नहीं रहता है, मतलब कभी कभी उसी का पागलपन का दौरा पड़ता है, बट जब वो सही मेंटल कंडीशन पे होता है तभी वो शादी के लिए कंसेंट मान लो दे भी दिया, बट वो जब उसका जब पागलपन चढ़ता है ना, वो किसी को मार देता है, किसी को अटैक करता है, वो इंसेन बन जाता है, उसी के आसपास रहना भी दूसरे पार्टनर के लिए बहुत ही हावी हो सकता है. दैट इज रियली रिस्की फॉर द अनदर स्पाउस टू स्टे विद दैट पर्सन. इधर ये होता है, नहीं तो द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द सच ए मेंटल डिसऑर्डर और एनी काइंड ऑफ द डिजीज दैट ही इज अनेबल फॉर द प्रोक्रिएशन ऑफ द चिल्ड्रन. उसका वो बच्चा बच्चा either if it is the woman, then the woman is unable to give birth to a child, and the if it is a man, the man is uh, considered as incapable to give a child. Okay, इसको बोलते हैं impotency. If the man is having the impotency or unable to continue the proper sexual relationship with the wife. The third point is the person is subject to the recurrent attacks of the insanity. उसी को कभी कभी insanity का अटैक आता है. तो ये circumstances पे ओके अगर कोर्ट को reasonable लगता है, if the court is genuinely concerned, or the court is genuinely convinced with the seriousness of the case, then the court will approve the divorce or the judicial separation or the restitution of the conjugal rights. जो भी अप्लाई किया जाता है तो कोर्ट कैन गिव द डिसीजन अकॉर्डिंगली. सेकेंड पॉइंट आपका क्या होता है? when there is the circumstances under clause 1 clause 1 of subsection 1 of the section 30. Okay, so when we are understanding about the section 13, we are talking about the divorce, and under subsection 1 subclause I we have understood when the marriage has been solemnized and there is the voluntary sexual intercourse by one spouse with another person without the even after having his own or his own spouse, if there is a wife or if it is a husband, having one spouse, except the spouse, the party is having the sexual intercourse with any other person, which is called the extramarital affairs. मेरा कोई पति या पत्नी होते हुए भी मैं और किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हूं, इन दैट सर्कमस्टांसेस. नेक्स्ट क्या हुआ? where the ground of the petitioner is cruelty and the petition has not in any manner condoned with the cruelty. When the partner, one of the uh, ground is that the petitioner is treating another person with cruelty and there is the sufficient evidence of it. Okay, and when the divorce is on the ground of the mutual consent. ये mutual का concept तो हमने mutual consent का जो भी concept है वो तो हमने पहले से ही पढ़ चुके हैं. And the consent has not been obtained by force, fraud, or undue influence. The mutual consent over here has not been obtained by the force, by the undue influence, by the fraud. किसी भी गलत तरीके से वो कंसेंट नहीं लिया गया है. दैट म्यूचुअल कंसेंट इज जेन्युइनली गिवन बाय बोथ ऑफ द पार्टीज. ओके, एंड द पिटिशन इज नॉट presented under section 11 and prosecuted in collusion with the respondent. Okay, so section 11 of the Hindu Marriage Act, it totally speaks about void marriages. So the petition is not presented on the due of a void marriage. That means, as we have understood, the petitions in related in relation to the void marriages,
for the petition of the divorce or the judicial separation related to the void marriage is not acceptable. And the petition is has not the petition which has been done on the due of the void marriage is not considered as a valid petition itself, because यहाँ पे जब हम कोई शादी को void marriage डिक्लेयर करते हैं उसका मतलब क्या है, उस शादी को हम वैलिड मानते ही नहीं. वी आर नॉट इवन कंसिडरिंग द मैरिज एज ए वैलिड मैरिज. हम उसी को एक शादी का दर्जा नहीं देते हैं, हम उसी को शादी मानते ही नहीं है. सो इन दैट सर्कमस्टेंसेस जहां पे कोई शादी हुआ ही नहीं अकॉर्डिंग टू द लॉ, अगर लीगली किसी को हम पति पत्नी नहीं मान रहे हैं, देन उनका डिवोर्स का कोई केस आता है या फिर उनका जुडिशियल सेपरेशन का कोई केस आता है, तो हम उस तरह का पिटिशन को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? दैट इज व्हाई व्हेन देयर इज नो पिटिशन प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 11, okay, and prosecuted in collusion with the respondent, that means when there is the valid case, जैसे कि हमने बोला उससे पहले कि जो भी अगर म्यूचुअल कंसेंट से कोई भी पार्टी डिवोर्स के लिए आया है, उन दोनों का जो भी कंसेंट दिया गया है ऑफ द रिगार्डिंग द डिवोर्स, दैट इज म्यूचुअली गिवन विद अ वैलिड कंसेंट. वहां पे ऐसा कोई नहीं है कि किसी तीसरा पार्टी का अनड्यू इन्फ्लुएंस है, कोयर्सन है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है. द पार्टीज आर जेन्युइनली गिवन द कंसेंट ऑफ द डिवोर्स. ये हो गया आपका पहला चीज. दूसरा क्या बताया, द पिटिशन इज नॉट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ द वॉइड मैरिज, है ना. कोई भी वॉइड मैरिज से वो पिटिशन नहीं फाइल किया गया है. ओके, yes, and we are discussing that one more line it has been mentioned under subsection 1 subclass C, that there is no collusion prosecuted in collusion with the respondent. That means यहाँ पे जो म्यूचुअल कंसेंट है डिवोर्स के लिए या फिर द पिटिशन रिगार्डिंग द डिवोर्स और द जुडिशियल सेपरेशन, that is with that has not been done with the collusion with the respondent. That means यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पिटिशनर एंड द रेस्पोंडेंट जो होते हैं ना वो मिले हुए होते हैं ड्यू टू सर्टन काइंड ऑफ द फाइनेंशियल बेनिफिट, और किसी को फंसाने के लिए किसी भी इलीगल इंटेंशन से वो जो पार्टीज रहते हैं ना, वो बिना वजह का डिवोर्स हो गया, जुडिशियल सेपरेशन का जो केस है वो कोर्ट पे लाते हैं. ओके, वहां पे दोनों का इविल इंटेंशन जो है ना वो जुड़ी हुई होती है. द इलीगल इंटेंशन इज अटैच्ड विथ इट, उसी को बोलते हैं कल्यूजन. तो वहां पे द रेस्पोंडेंट का हो गया या पिटिशनर का हो गया, किसी का भी कोई गलत इंटेंशन नहीं है बिहाइंड दैट पिटिशन फॉर द डिवोर्स और द जुडिशियल सेपरेशन और द रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट्स. ये हो गया आपका सबक्लॉज subsection 1 subclause C. Okay, and there has not been any unnecessarily or improper delay in instituting the proceedings. अगर एक केस फाइल होने के बाद जो डे टू डे का प्रोसीडिंग्स होता है ना, वहां पे कोई अननेसेसरी डिले ना जानबूझ के नहीं कर रहा है. दैट मीन्स द प्रोसीडिंग्स दैट इज हैपनिंग डे टू डे बेसिस. वहां पे कोई अननेसेसरी डिले नहीं हो रहा है, वहां पे किसी भी तरह का इलीगल या इम्प्रॉपर इंटेंशन से किसी को हार्म करने के लिए जानबूझ के केस का डिले करवाना, डेट पे डेट देना या फिर पार्टीज का वहां पे ना आना, ये सब नहीं हो रहा है. देर इज नो अनलॉफुल इंटेंशन बिहाइंड इट टू डिले द केस. गॉट इट? नेक्स्ट, there is no other legal ground why relief should not be granted, and there is no other legal ground. ऐसा कुछ भी लीगल ग्राउंड नहीं है जिस चीज को लेके रिलीफ ग्रांट नहीं किया जा सकता. सो अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाइड होता है ना, देन द कोर्ट in such a case but not otherwise, the court shall decree such relief accordingly. Then court क्या करेगा? Court will grant a relief to the parties, that might be the judicial separation relief or the relief for the divorce, जो भी है
court will grant the relief accordingly. Got it? Then comes subsection 2. ये क्या बोल रहा है? Before proceeding to grant any relief under this act, it shall be the duty of the court in the first instance in every case where it is possible to do consistently with the nature and circumstances of the case to make endeavor to bring about the reconciliation between the parties. So before the final decision देने से पहले और before granting the final relief of the divorce, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू ट्राई फॉर द रिकंसिलिएशन, जो कि मैं पहले 100 बार आपको बोल चुकी हूँ. रिकंसिलिएशन का पहला एक चीज मैंने आपको बोला था कि जब रिकंसिलिएशन करने के लिए कोर्ट ट्राई करता है, पहले दोनों पार्टी को ना 6 महीने का टाइम पीरियड देता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो 6 महीना. अगर उसी के बाद भी आपको लगता है कि नहीं आप एक दूसरे के साथ नहीं रह पाओगे, देन यू कैन गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. बट पहले कोशिश तो करो, ट्राई फॉर द 6 मंथ टू स्टे विथ ईच अदर. 6 महीने के बाद अगर लगता है कि नहीं हो पाएगा तो देन ठीक है, वी विल ग्रांट यू ए डिवोर्स. ओके. बट उससे से पहले अगर कोर्ट को ये लगता है कि मतलब यहाँ पे जो पार्टीज है दे आर हैविंग ए सर्टेन काइंड ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा कोशिश किया जाए तो शायद दोनों पार्टी मिल सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द सबसेक्शन 3, कोर्ट क्या करेगा? अगर कोर्ट को रीजनेबल लगता है ड्यूरिंग द ट्रायल पीरियड और ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स कि यहाँ पे रिकंसिलिएशन करना बहुत जरूरी है, देन कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट विल एडजर्न द प्रोसीडिंग नॉट मोर देन 15 डेज. 15 दिन के लिए कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो है उसी को एडजर्न कर सकता है. एंड कोर्ट विल गिव द ऑप्शन टू द पार्टीज कि आपके पास, आपके सामने ऐसा कोई इंसान है जिसको आप, जो आपके लिए कंसिलेटर का काम करेगा. जस्ट लाइक एवरी पार्टी हैज देयर ओन चॉइस कि आई नो दिस पर्सन इज वेरी गुड एंड आई वांट दैट पर्सन टू बी माय काउंसिलर. ओके. तो अगर ऐसा पार्टीज का कोई प्रेफरेंस रहता है कि हाँ वी वांट दिस पर्सन टू बी आवर कंसिलेटर, तो ठीक है. अगर पार्टी का प्रेफरेंस कोर्ट को सही लगता है तो अच्छी बात है. अगर पार्टीज का कोई आइदर प्रेफरेंस नहीं है या पार्टीज का प्रेफरेंस कोर्ट को सही नहीं लगता है, तब द कोर्ट को ये लगता है कि अगर ये इंसान कंसिलिएशन करेगा तो शायद हो सकता है कि डिसीजन एक तरफ हो सकता है, या फिर देयर माइट बी द इनबैलेंस इन द जजमेंट, इनबैलेंस इन द डिसीजन. So in that circumstances, what the court will do? The court will appoint a person on his behalf. कोर्ट खुद से एक इंसान को अपॉइंट करेगा एज फॉर द प्रोसीडिंग ऑफ द रिकंसिलिएशन. एंड वहां पे क्या होता है? द कंसिलेटर हु हैज बीन अपॉइंटेड फॉर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द रिकंसिलिएशन, ही टेक्स केयर ऑफ द प्रोसीडिंग्स. और ये जो प्रोसीडिंग्स एडजर्न होता है ना, वो कितना दिन के लिए होता है? 15 दिन के लिए ही मैक्सिमम हो सकता है. मतलब ऐसा नहीं है कि कंसिलिएशन का प्रोसीडिंग 15 दिन के अंदर हो जाना चाहिए. बट कंसिलिएशन से पहले जो भी प्रोसीडिंग्स होता है, अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं यहाँ पे थोड़ा सा ये जो प्रोसीडिंग्स चल रहा है ना, इसी को थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए एंड यहाँ पे पार्टीज को थोड़ा कंसिलिएशन के लिए वक्त देना चाहिए, तो उसी मामले में कोर्ट विल अपॉइंट ए पर्सन एज द कंसिलिएटर एंड द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग कंटिन्यूज फॉर द पीरियड ऑफ 15 डेज. उसी के बाद जो कंसिलेटर अपॉइंट होते हैं, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द कंसिलेटर who has been appointed for the person who has been appointed for the process of the reconciliation. This is the duty of the conciliator to inform the court or to inform the judge about the things happening, about the occurrence of the event, about the development, about the proceedings कि conciliation पे कितना improvement हुआ, क्या क्या डिसीजन हुआ, क्या द are the parties are still want to be stay separate with each other, are the parties are still interested to stay with each other, what is the real scenario. ये जो चीज है ना, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द कंसिलेटर टू इन्फॉर्म टू द कोर्ट थ्रू द रिटन डॉक्यूमेंट. कंसिलेटर यहाँ पे थ्रू द रिटन डॉक्यूमेंट ये सारी चीज क्लैरिफाई करेगा किसको? टू द कोर्ट. एंड वहां पे प्रोसीडिंग्स विल बी कंटिन्यूड एज यूजुअल. बट अगर कोर्ट को लगता है कि द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग इज एक्चुअली हेल्पिंग द पार्टीज आर गेटिंग द चेंज
इन देयर मेंटालिटी कि हाँ वो एक दूसरे के साथ रहने के लिए राजी हो रहे हैं, देन द कंसिलेशन प्रोसीडिंग कैन बी कंटिन्यूड फॉर ए लॉन्गर पीरियड. ओके. एंड यहाँ पे और एक चीज है, सेक्शन 13 का सब क्लॉज 2, क्लॉज 3, 4, 5, 6, 7 अब सबसेक्शन 1. तो ये क्या क्या बोलता है? पहला ये होता है आपका सोलेमनाइजेशन ऑफ द मैरिज when the person has been converted to the another religion, the person is of the unsound mind. Then the third, the clause 3, it speaks about the person who is of the unsound mind. Then clause 4, it speaks about that the clause 5 has speaks about the person has been suffering from any kind of the venereal disease in the communicable form. Okay. Then we have understood that when the party has renounced the world by entering into the religious order, then the next point, the parties has not been heard from last 7 years. Okay. तो ये जो कंडीशंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे फ्रॉम द सबसेक्शन 1 क्लॉज आई, क्लॉज 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. दैट द पर्सन हैज कन्वर्टेड टू अनदर रिलीजन, or the person is of the unsound mind, the person is suffering from a venereal disease which is of the communicable form. Then we have discussed the person has renounced the world by entering into the religious order. And lastly, the person is not has been alive for more than 7 years. 7 साल से ज्यादा हो गया, the person is alive or not, उसी का कोई आता पता नहीं है. So in these circumstances, there is no order by the court or by the court of law for the reconciliation proceeding. That means अगर ऐसा कुछ circumstances होता है, then court will not approve for the reconciliation proceeding. That means अगर कोर्ट को लगता है कि ऐसा circumstances है जहाँ पे either the person has been converted to another religion, जो पर्सन है वो अपना रिलीजन चेंज कर चुका है और वो 7 साल से जिंदा है कि नहीं उसका कोई आता पता नहीं है, उसी का दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो ये सारे सर्कमस्टांसेस पे ना देयर इज अर्जेंट कॉल एक्चुअली. सो yeah, so when the parties are not have been heard from more than 7 years, and in these circumstances when the court yeah when the court feels that the parties are in those circumstances, the court will not order for the reconciliation. See, this is a very genuine situation. आप खुद सोच के देखिए, अगर किसी का दिमागी हालत ठीक नहीं है, अगर किसी ने अपना रिलीजन चेंज करके हिंदू से मुस्लिम या क्रिश्चियन बन गया है, तीसरा ऐसा है कि अगर ऐसा कोई पार्टी है who is suffering from any kind of the vulnerable disease, just as the HIV, any sexually transmitted disease or something like that, or any kind of the person who is uh, just like I told in the under the last who is not been hard more than 7 years, वो जिंदा है कि नहीं उसका कोई भी आता पता नहीं है. Okay. So in these circumstances, court will not ask for the reconciliation. पहला कंडीशन जो हमने पढ़ा कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द वेनेरल डिजीज, तो उसी में रिकॉन्सिलेशन का चांस ही नहीं आता. दूसरा, अगर किसी ने अपना रिलीजियस ऑर्डर मतलब रिनाउंस द वर्ल्ड बाय एंटरिंग इनटू द रिलीजियस, किसी ने दुनिया छोड़ के सन्यासी बन गया है, किसी ने जिंदा है कि नहीं उसी का आता पता नहीं है, कोई मेंटली अनसाउंड है, या फिर कोई अपना रिलीजन बदल दिया है, तो ये सारे सर्कमस्टांसेस पे रिकंसिलिएशन करेगा तो किसके साथ करेगा? उसका कोई पॉइंट है रिकंसिलिएशन करने का? तो इन दिस सर्कमस्टांसेस द रिकंसिलिएशन बिटवीन द पार्टीज विल नॉट बी टेकन प्लेस. And the last point, in every case where the marriage is dissolved by the decree of the divorce, the court passing the decree shall give a copy thereof free of cost to the each of the parties. When there is the approval of the decree of the divorce, when the court is passing this decree of the divorce, shall give a free copy. When ये decree is passed, जब डिक्री पास हो जाता है
देन कोर्ट क्या करेगा, एक फ्री कॉपी देगा, एक कॉपी ऑफ द डिक्री विल बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू ईच ऑफ द पार्टीज। डिक्री का जो भी कॉपी है वो फ्री ऑफ द कॉस्ट टू द पार्टीज दिया जाएगा। No, no fee will be taken to give the copy of the decree of the divorce. When it will be given to the parties, means to the petitioner and the respondent, both of the parties will get the free copy of the decree. Got it? This is explained under section 23 of the Hindu Marriage Act. Okay. So you are left with few other provisions, section 23A, 24, 25 and 26, 27 to 29. These are the few provisions are left. This is what we are going to conclude in the next class, and we can conclude the class over here, guys. This is all for today. Thank you so much. Bye bye.